या फिर आपको 3 लड़कियों ने प्रपोज किया हो, कुछ ऐसा? 3 से ज्यादा। कुछ बताइए ना उसके। मैं कुछ 8-10 साल 15। I want to ask you one thing. You have worked with so many movies in dancing. आपका तो main as you are a choreographer also. How important is the music in a film? Because you are a choreographer, dance तो important है. Now you have seen so many dancing. So how important is the music for the dance, for a dance in a film? Whatever songs you have done. So how important is the music director's compositions for the dance? Right. Of course, it's very, very important. Without music, we can't dance only. I mean. So what do you expect from the music director? Very good songs. You like Himesh is very nice. Yeah, it's very good. But Prabhu also works on music himself. I mean, I'm not taking away credit from Himesh. सब हिमेश के गाने. पता चलता है. You come to know. उनकी tunes है. But when he's designing the song in his head, also he keeps saying, okay, give me this instrument here or something. So that input Prabhu keeps giving. Yeah, that only I was asking. तो आप अपना Prabhu ji, you give your input in that songs. I think a director gives input in everything, no? Thank you. You use some of the tricks to make Ajay dance. What are those tricks? Could you just... Tricks? He only kept saying it's very easy, so try it. That was his main trick. When you see the film, you'll know why I chose this film. You don't often get such glamorous characters, but also like strong roles. So it's glamorous, but a very strong performance-based role. So that's why. And also, you know, Ajay sir and Prabhu sir, how can anybody say no? अजय, आपने हमेशा कहा है कि सोनाक्षी बहुत अच्छा डांस करती है, सड़क पर भी गाने बजाए तो वो डांस करना शुरू कर देती हैं. What about Manasi? What do you think about her? I think ये सबने देख लिया. अब I think इन्होंने तो पहले blockbuster song बोल दिया. Thank you. But she's पहली फिल्म है and she's performed so well. तो आई थिंक इनका भी आपने भी जब गाना देखा होगा तो आपको आपके सवाल का वैसे ही जवाब मिल गया होगा कि why she chose this film. Because I don't think that anybody else would have presented her in this way in the first film any which ways. And she's really done well. She's worked very hard also. हम देख रहे हैं कि इस फिल्म में आप 3 एक्ट्रेस के साथ रोमांस कर रहे हैं. अगर मैं आपके रियल लाइफ पे आऊँ तो बुरा मत मानेगा, लेकिन आप बहुत वाइफ डेडिकेटेड हैं. बट अगर स्कूल के वक्त या ऐसा कुछ वाकया हुआ कि आप एक वक्त में 3 लड़कियों के बीच घिरे हों, या फिर आपको 3 लड़कियों ने प्रपोज किया हो, कुछ ऐसा? 3 से ज्यादा. कुछ बताइए ना उसके. मैं कुछ 8-10 साल 15 साल पहले सोच रहा हूँ. कुछ और बताइए ना डिटेल, मतलब वो I can't talk about details right now, but जितने कोई अगर सीनियर जर्नलिस्ट है उनको सब मेरी कहानियां पता पुरानी. मेरा क्वेश्चन आप तीनों से ही है. ये जो सॉन्ग है ये गैंगस्टर पे फिल्माया गया है. आप तीनों का बॉलीवुड में सबसे फेवरेट गैंगस्टर कौन है ऑल टाइम? As in जिसने गैंगस्टर परफॉर्म किया है? हाँ, जिसने गैंगस्टर परफॉर्म किया. देखिए मैं तो बहुत क्लियर हूँ. मैं अपने आप को ही कहूँगा क्योंकि कंपनी और वंस अपॉन अ टाइम मैंने की है, तो किसी ने इतना अच्छा गैंगस्टर परफॉर्म नहीं किया. And I will answer like Prabhu sir and say same. सर अपने वर्ड बोल दीजिए. ऑल टाइम फेवरेट गैंगस्टर कौन है आपका? I have seen Company. It was. Better at this time? Of course there is, because I remember when I was doing Once Upon a Time, I wasn't sure if I should do the film because I had already done Company, and Company was really, really appreciated, the performance and everything. So then, till I found another way to perform in Once Upon a Time, and it was a completely different character. I mean, there was a gangster who was happy and smiling all the time, and Company was a serious guy. So we changed the color of the thing. So there is obviously pressure, and if I wouldn't have found this zone, then I wouldn't have done Once Upon a Time. कम बात करते हैं, लेकिन जो आपकी फिल्में होती हैं, जैसे एक्शन हम देखते हैं, वो टोटली आपकी रियल पर्सनालिटी से टोटली अलग है. तो वो कैसे मैनेज करते हैं आप? एक्चुअली वो ही है मेरी रियल पर्सनालिटी. और मैं अग्री करता हूँ. ये चुप रहते हैं, लेकिन इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, ये बहुत ही फैंटास्टिक इनका कॉमेडी टाइमिंग और सेंस ऑफ ह्यूमर और बहुत कमीना भी है. कमीना मींस किस सेंस से, कैसे? बिकॉज ये ऐसी चीजें सोचते हैं जो कि नॉर्मल आदमी नहीं सोच सकता. एक दिन बिताइए इनके साथ, पता चल जाएगा. अजय जी, मेरा सवाल है कि
DDLJ के 1000 एपिसोड्स मतलब 1000 वीक हो रहे हैं, किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं काजोल के साथ, क्योंकि बहुत सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म है फिल्म इंडस्ट्री। सेलिब्रेट तो सोचा नहीं कैसे करेंगे, बट आई थिंक इट्स ग्रेट बिकॉज किसी फिल्म का को ये नहीं हुआ जो DDLJ को हुआ, एंड शी इज ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड एवरीबडी इज फीलिंग वेरी ग्रेट अबाउट इट। इस वक्त आप हरफन मौला एक्टर के रूप में मतलब हर तरह की फिल्में की हैं, हर तरह की, नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, तो कभी पीछे मुड़ के देखते तो कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा आपके नज़दीक है? ऑनेस्टली आप हर फिल्म में उतनी मेहनत करते हैं, कुछ फिल्में आप लोगों को पसंद आती हैं, कुछ फिल्में नहीं पसंद आती, कुछ परफॉर्मेंस पसंद आते हैं, कुछ नहीं आते, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो परफॉर्मेंस आपको पसंद नहीं आया उसमें हमने मेहनत नहीं की। उसमें काफ़ी चीज़ें जो टीम वर्क होता है, जो गलती हो जाती है सबसे मिलके, बट मेहनत आपने उतनी की होती है तो फिर आप उसको डिजोन नहीं करते। Thank you so much, ladies and gentlemen, for your time, and I hope you liked the song.